Hello everyone. Today we are going to continue a chapter which we started last week, and this is the fourth session of the chapter, and topic was traders, kings and pilgrims. Students, as I told you about the story of Silk Route, and I told you about the kings who tried to control large portions of this route, and after that we talked about the emergence of Buddhism in other countries apart from India, and Buddhism in reality was the religion from India, and it spread from India to China because of trade of silk, and it gets its name for lucrative Chinese silk trade, as I told you. And today we are going to continue about the spread of Buddhism. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी न्यू सब हेडिंग से, जिसका नाम है द स्प्रेड ऑफ बौद्धिज़्म. बौद्धिज़्म कैसे अदर कंट्रीज़ में पहुंचा एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट. सो लेट अस स्टार्ट. सो बौद्धिज़्म इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस एंड लव. Hence it got patronage. बौद्धिज़्म जो कि एक ऐसा रिलीजन माना जाता था which is of peace and love, and patronage means a person who gives money. That is why people the kings and rulers, they gave money to spread Buddhism, and this helped to and support to spread Buddhism in other countries. एंड अशोका वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ बौद्धिज़्म. अंडरलाइन करेंगे, अशोका ने इसके लिए बहुत काम किया. एंड इन द other chapter we read about the spread of Buddhism and the reason, and Ashoka spread, he sent his daughter and son even to other countries like Sri Lanka, Myanmar, Bhutan, Nepal and China to spread his religion. So other kings who also worked for the same, and one of the most famous king among them was Kanishka. कनिष्का के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा अभी कि he was the best known ruler who controlled the Silk Route, and he was the most famous king among the rulers who worked for the spread of Buddhism, the ruler of Kushana Empire. ठीक है, तो अब हम करेंगे कि कनिष्का ने कैसे इसको बढ़ाया. ये आप मैप भी देख सकते हैं, इस मैप में भी आप देख सकते हैं. यू कैन सी दैट कनिष्काज एम्पायर, यू कैन सी विद द ग्रे कलर, है ना. with the gray color you can see the empire of Kanishka, and now most of the part is not in India. The area, means the empire which Kanishka had, its most of the part is not in India. His empire extended, तो हम यहाँ देख सकते हैं कितना लार्ज किंगडम था यहाँ पे. ग्रे कलर का जो कनिष्का का एम्पायर, एंड वेस्टर्न ये जो हम देख रहे हैं पिंक कलर से, ये हमारा है वेस्टर्न सत्रापास. ये अदर रूलर्स थे. और जो ग्रे कलर में हम ऊपर देख रहे हैं, यू कैन सी दिस, ये है पूरा कनिष्का का एम्पायर, है ना. तो आगे अब हम आगे पढ़ते हैं. हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम गांधार टू कहाँ तक था, टू अंधार कश्मीर टू वाराणसी, मीन्स फ्रॉम नॉर्थ टू mid of the northern part of the country. In the south it touched the Vindhyas. इसको आप अंडरलाइन करेंगे, विंध्यास. एंड आउटसाइड इंडिया इट इंक्लूडेड अफगानिस्तान, खोतान, काशगर एंड यरकंद. तो ये आप सब अंडरलाइन करेंगे. आउटसाइड द इंडिया इसके एरियाज थे अफगानिस्तान, खोतान, काशगर एंड यरकंद. तो इनको आप अंडरलाइन करिए. नेक्स्ट वी हैव he came into contact with the great Buddhist monks, and this Kanishka, he came in contact with Buddhist monk जिनका नाम था आशुघोषा. इसको आप अंडरलाइन करेंगे, आशुघोषा.
ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क के कांटेक्ट में आए जिसका नाम था आशुघोषा। एंड आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को जीतने के बाद ये आशुघोषा के कांटेक्ट में आए। एंड ही वॉज अ पोइट, आशुघोषा वॉज अ पोइट हु कंपोज अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा। आशुघोषा एक ऐसे पोइट भी थे, मॉन्क भी थे, एंड he composed a biography of the Buddha Charitra. Underline करेंगे, name of the biography was the Buddha Charitra. Like Ashoka, he used a royal machinery for the spread of Buddhism. अशोका की तरह इन्होंने भी रॉयल मशीनरी को, मीन्स अपनी रॉयल्टी को यूज़ किया फॉर द स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म. ही कॉल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ कुंदलवाना इन कश्मीर. This council began writing commentaries on बुद्धिस्ट टेक्स्ट. और ये जो फोर्थ काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई इन्होंने कश्मीर में. एंड ये शुरू हुई किससे? इट बिगेन राइटिंग कमेंट्रीज ऑन बुद्धा's टेक्स्ट. और बुद्धा के टेक्स्ट पे डिफरेंट कमेंट्रीज, कमेंट्स लिखे गए उस पीरियड में. Ashugosha and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit. Ashugosha और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे, इंटेलेक्चुअल्स जो थे, उन्होंने अब संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट को संस्कृत में भी लिखना शुरू किया. कनिष्का became a follower and a patron of Mahayana sect. और कनिष्का अब एक फॉलोअर बन चुके थे बुद्धिज़्म के. उसके साथ साथ ही वो बिकेम अ पेट्रन ऑफ द महायाना सेक्ट. पेट्रन, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, it means that he supported, he spent money for the spread of this sect of Buddhism, Mahayana, as well as he gave support for the spread of Buddhism. He gave liberal grants. उसने अब liberal grants देना शुरू कर दिया for the construction of monasteries, stupas and other monuments. He also sent missionaries to Central Asia. उसने अपने missionaries कौन लोग होते हैं? Those who move here and there and to spread their religion. तो उसने अब अपने missionaries को भी भेजा Central Asia और China में to spread महायान बौद्धिज़्म. और महायान बौद्धिज़्म के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में कि ये बुद्धा को एक गॉड की तरह मानते थे. हमने 2 सेक्ट्स के बारे में जाना था कि बौद्धिज़्म के 2 सेक्ट्स थे. वन वॉज हीनयान एंड सेकेंड वॉज महायान. हीनयान जो थे वो मानते थे बुद्धा एज अ पायस मैन, अ होली मैन, नॉट एज अ गॉड. बट जो महायान थे वो बुद्धा को गॉड की तरह मानते थे. एंड दे वर वेरी मच इन फेवर ऑफ आइडल वर्शिप ऑल्सो. एंड दे यूज संस्कृत लैंग्वेज टू एजुकेट द पीपल. तो इसी सेक्ट के फॉलोअर थे कनिष्का. And he also sent missionaries to Central Asia and China to spread Mahayana Buddhism. और उसने काम किया महायान बौद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए. Hence, new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed. और धीरे धीरे ये जो सेक्ट था, ये जो सेक्शन था बौद्धिज़्म का, ये डेवलप होता चला गया. This had 2 distinct features. इसके 2 distinct features थे. नंबर 1 था, earlier the Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. पहले बुद्धा को के जो स्कल्पचर्स थे उनकी बुद्धा की जो प्रेजेंस दिखाई जाती थी, it had 2 distinct features. And one was shown in sculpture by using certain signs. Now, for instance, his attainment of enlightenment, जैसे for example उनकी attainment of enlightenment को, जो उनकी enlightenment ज्ञान प्राप्ति का जो सीन था, जो साइन उसके लिए यूज़ किया गया था, it was shown by sculptures of the people tree. तो उसका साइन क्या था, सिंबल क्या था? A people tree. Means it was a symbol that he got enlightenment, है ना. ना स्टैचू बुद्धा वॉज मेड. लेकिन महायान ज़्यादा जब डेवलप हो गया तो अब स्कल्पचर्स में क्या आ गया? बुद्धा, स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड. अब स्टैचूज बनाए जाने लगे, उनकी पूजा की जाने लगी. एंड मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा एट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. इसमें से बहुत सारे मथुरा में बनाए गए इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. ठीक है.
तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बनाया तक्षशिला, अदर्स वर मेड इन तक्षशिला एट गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, बाकी बने गांधार में स्कूल ऑफ आर्ट में। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ ऑफ बोधिसत्व। अब सेकेंड चेंज क्या था कि बोधिसत्व के मानने में क्या मानते थे ये लोग? These were supposed to be person who had attained enlightenment। अब ये कौन थे मानने वाले? ये वो लोग थे जिन्होंने enlightenment को, ज्ञान को प्राप्त किया था। वंस दे अटेंड एनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्त हो जाती था, दे कुड लिव इन isolation. They could live in complete isolation and meditate in peace। उसके बाद उनको complete isolation में रहना पड़ता था, और peace means they had to live alone at a place where they could only meditate peacefully। However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people। हालांकि इस टाइम पे भी ये ऐसे आइसोलेशन में रहते हुए भी ये लोगों को टीच कर सकते थे, वर्ल्ड को टीच कर सकते थे एंड हेल्प अदर पीपल। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर। बोधिसत्व की जो वर्शिप थी वो बहुत पॉपुलर हो गई एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर इन कोरिया एंड जापान। अंडरलाइन कर लेंगे, लेटर इन जापान। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। लेटर इन जापान एंड बौद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। उसके बाद बौद्धिज्म वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में भी फैला। वेयर डजन्स ऑफ केव्स और हॉलोड आउट ऑफ हिल्स, जहाँ पर डजन्स ऑफ केव्स बनाई गई हिल्स को हॉलो करके, उनको खोखला करके, फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। some of these caves were made on the older orders of the king and queens। और कुछ जो caves बनाई गई they were ordered by the kings and queens, others by merchants and farmers। कुछ merchants and farmers ने भी बनवाई। these were often located near These were passes through the western घाट्स। और ये ज़्यादातर कहाँ होती थी? थ्रू द passes of western घाट्स। अब इसके बाद roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes। अब कुछ ऐसी थी roads जो कि prosperous parts, जो कि बिजनेस ट्रेड के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थे, बहुत डेवलप पोर्ट्स थे ऑन द कोस्ट विद सिटीज़ इन द डेक्कन रैन थ्रू दीज पासेस। ट्रेडर्स प्रोबेबली हॉल्टेड इन दीज केव्स। और ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स जब इन घाट से, इन पासेस से होकर निकलते थे तो वो ज़रूर इन केव्स में हॉल्ट लेते होंगे, मीन्स कुछ टाइम के लिए रुकते थे। एंड मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स, मोनेस्ट्रीज भी रुकते थे ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स। एंड दिस वे बौद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड आउट ईस्टवर्ड्स। इसके साथ साथ बौद्धिज्म ईस्ट की तरफ भी फैला, टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, आप लोग अंडरलाइन करते जाइए, and other parts of Southeast Asia, including Indonesia. So these were the other countries where Buddhism spread very fast। The order of older form Buddhism, इसके साथ साथ जो बौद्धिज़्म की एक पुरानी फॉर्म थी थरवाड़ा बौद्धिज़्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज़। ये जो अब हम देख रहे हैं साउथ ईस्टवर्ड्स के जो कंट्रीज़ हैं, एरियाज़ हैं, यहाँ पे बौद्धिज़्म की ओल्डर फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर थी, विच वॉज नोन एज थरवाड़ा। अंडरलाइन करेंगे। एंड फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।